हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग एक न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। पहले देखो व्हाट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। कॉर्पोरेट प्लस accounting. Simple corporate accounting is consist of two words. First one is corporate, second one is accounting. Okay, so first thing is corporate simply means that company. Is that okay? Next one accounting simply means that accounting के बारे में मैं ज्यादा नहीं चर्चा करूंगा क्योंकि आप लोग को पता है accounting is a business language which is process of recording, classifying, summarizing, and analyzing of business transactions and communicating the results after that to the users of accounting. Simply, corporate accounting consists of two words. One is corporate, second one is accounting. Corporate means company. Accounting means process of recording, classifying, summarizing, analyzing the business transactions and communicating the results to the users of accounting. Okay, clear? So the corporate accounting consists of two words. Is that clear? Next one, in case of company, what do you mean by company? Is that okay? As per section 2, subsection 20 says that company means a company which is registered under Companies Act 2013 or any previous company law. Is that okay? Simply, corporate accounting consists of two words. One is corporate, second one is accounting. Corporate means simply company. Accounting means process of recording, classifying, summarizing, analyzing the results of business transactions and communicating. So, accounting is the process of recording, classifying, summarizing, analyzing the business transactions and communicating the results of that transactions to the users of accounting. Okay, so corporate accounting means all these things. Okay, so company means as per section 220, company means a company which is registered under Companies Act 2013 or any previous company law. अच्छे से देखते ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कंपनी मीन्स ए कंपनी, अच्छे से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। कंपनी मीन्स ए कंपनी which is registered under Companies Act 2013, मतलब जो कंपनी रजिस्टर हुआ है किसमें, इधर कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। व्हाट इज प्रीवियस लॉ? कंपनी एक्ट 1956। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपली कंपनी मीन्स जो भी 2013 कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाया उसको भी हम बोलेंगे कंपनी। जो भी 1956 कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? कंपनी। सो 1956 के लिए एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। समझ में आ रहा है? सो कंपनी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है थोड़ा देखते हैं हम लोग। हाँ, फर्स्ट वन इज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या होता है रे आर्टिफिशियल लीगल पर्सन? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट में पढ़े होगे। क्या पढ़े हो? पर्सनल अकाउंट। पहले क्या होता है अकाउंट? पर्सनल, इम्पर्सनल।
The personal account is divided into three types. One is natural account, second one is artificial account, third one is representative personal account. समझ में आ रहा है? That one artificial means who is not having flesh and blood, जिसके अंदर ब्लड नहीं है, फ्लैश नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे? आर्टिफिशियल. अगर फ्लैश और ब्लड होता तो इसको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल. आई एम ए नेचुरल पर्सन, बट दिस व्हाइट बोर्ड, दिस मार्कर इज एन आर्टिफिशियल थिंग. सो company is an artificial legal person. The word legal is here most important. Why most important? Because this one is artificial legal person. Legal word is most important because the company is only created by law. What here legal means? The company only created by law. समझ में आ रहा है? कंपनी ओनली लॉ के हिसाब से क्रिएट होगा. लॉ ही जब चाहेगा तभी उसको डिस्ट्रॉय कर पाएगा. इसीलिए हम क्या बोलते हैं? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. समझ में आ रहा है? सेकेंड पॉइंट नंबर 2 इज योर सेपरेट लीगल एंटिटी. ये तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत बार पढ़ चुके हो. व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी? सेपरेट मीन्स अलग. द ओनर ऑफ दैट बिजनेस एंड द बिजनेस इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. फिर से बोल रहा हूं, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब द ओनर and the business are different from each other, separate from each other. So first one is artificial legal persons. कंपनी जिसके पास कंपनी का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? फर्स्ट वन इज योर आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, सेकेंड वन इज योर सेपरेट लीगल एंटिटी. इसका मतलब कंपनी का ओनर एंड उसका बिजनेस दो अलग अलग चीज है. क्लियर? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉमन सिल. क्या होता है कॉमन सिल? जब आप हम एक चीज पढ़ोगे, जैसे देख लो, मेरा एक चेकबुक है, मुझे किसको पेमेंट करना है, तो मैं एक चेकबुक लाता हूँ, चेक मुझे अपना फटाफट साइन कर देता हूँ. बिकॉज आई एम ए नेचुरल पर्सन. मुझे पता है कि इसे साइन करना है, क्या करना है. आई हैव ए नेचुरल पर्सन. बट द कंपनी इज हैविंग आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. मतलब उसके पास फ्लेश और ब्लड नहीं है, वो कभी भी साइन नहीं कर पाएगा. समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? बिकॉज ऑफ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ही इज नॉट हैविंग फ्लेश एंड ब्लड, दैट्स व्हाई ही शुड नॉट साइन इन हिज ऑथराइजेशन. जब किसी को ऑथराइजेशन देना हो वो कभी भी साइन नहीं कर पाता था, बिकॉज इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. सो उसको साइन करने के लिए, ऑथराइज करने के लिए एक चीज का जरूरत होता है, कॉमन सील. बट इन केस ऑफ 2013 कंपनी एक्ट, कॉमन सील is also not compulsory, it is an optional. To substitute this common seal, a new thing will become, we will discuss afterwards, or we will discuss in corporate accounting, that is one company secretary and board of director. If a company secretary and board of director is authorized, then it should not require a common seal. Okay, clear? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? That is common seal. Next point number 4, perpetual existence. क्या होता है रे परपेचुअल एग्जिस्टेंस? सिंपल सा मीनिंग, परपेचुअल एग्जिस्टेंस. आपको एक वर्ड पता है, गोइंग कंसर्न. अकाउंटिंग जब कंसेप्ट एंड कन्वेंशन पढ़े होगे, एक वर्ड होगा कंसेप्ट. कंसेप्ट में एक कंसेप्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. क्या बोल रहा है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट? सिंपल सा चीज बोल रहा है, एनी पर्सन कैन कम, एनी पर्सन कैन गो, इट शुड नॉट अफेक्ट टू दी बिजनेस. ये बोल रहा है कोई भी ओनरशिप आए, कोई भी ओनरशिप जाए, बिजनेस को अफेक्ट नहीं आएगा. लाइक दैट व्हेन ए कंपनी विल स्टार्ट, इट शुड एग्जिस्ट फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड. मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? जैसे सोच लो, एक कंपनी स्टार्ट होता है, एक पार्टनरशिप का बात ले लो. जब पार्टनरशिप स्टार्ट होता है,
पार्टनरशिप में अगर तुम चाहो तो लिमिटेड पार्टनरशिप कर सकते हो, जैसे 5 साल का पार्टनरशिप, उसके बाद खत्म हो जाएगा। वैसे कंपनी नहीं होता है। कंपनी व्हेन क्रिएटेड इट विल एग्जिस्टेंस और इट्स एग्जिस्टेंस विल बी फॉर परपेचुअल, फॉर इंडेफिनिट पीरियड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सो दीज आर दी मेन 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन कंपनी। फर्स्ट वन इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, second one is separate legal entity, third one is common seal, fourth one is perpetual existence. Okay, clear? फटाफट नोट करो ये 4 पॉइंट को। ओके, हो गया नोट? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं। फर्स्ट नाम क्या पढ़े रहे अभी? कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तुम बोलोगे सर हम लोग तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कितना पढ़ चुके हैं, हम जैसे पीएल अकाउंट बनाए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाए, बैलेंस शीट बनाए, हम तो सब कुछ बना लिए सर। ओके, हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बट कंपनी का जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक चीज होता है। जैसे सोच लो हमारा एक बिजनेस शुरू करने वाले हैं हम लोग। अगर मैं बिजनेस शुरू करवा रहा हूँ, ट्रांजैक्शन क्या होगा, मुझे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरा बिजनेस में। जब मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, फटाफट जर्नल बात छोड़ो, बात खत्म। समझ में आ रहा है? तभी कंपनी का कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स होता है, वो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स को हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या ट्रांजेक्शन है? जनरली देखो एक नॉर्मल बिजनेस में क्या क्या ट्रांजेक्शन्स होता है। फर्स्ट द ट्रांजेक्शन्स आर परचेज, सेल्स, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग डॉट डॉट डॉट, ऑल दिस ट्रांजेक्शन्स एज वी ऑल दिस डिस्कस्ड। ये सब चीज का डिस्कशन क्या होगा? सोच लो मेरा प्रॉफिट हुआ और मैं किसी को सैलरी दे रहा हूं, मैं सेल्स कर रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, रेंट दे रहा हूं, इलेक्ट्रिक बिल दे रहा हूं, एसी का मेंटेनेंस दे रहा हूं, कुछ भी खर्चा कर रहा हूं, उसको क्या ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा, ये सब चीज हमको पता है। समझ में आ रहा है? अभी जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमको क्या क्या नया चीज पढ़ना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड पॉइंट इज, पहले तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं, कहां पढ़े? पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तो हमको पता है भाई। ये हमेशा हमारा मेन मोटो क्या है रे? पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करो। जैसे मैं बोला था अकाउंटिंग का मेन मोटो होता है, जैसे होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको याद है मैंने बताया था फाइनेंशियल, पिछले क्लास भी आप पढ़ चुके होंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम लोग को क्या करवाना पड़ता है? 5 चीज प्रिपेयर करवाना पड़ता है। वन इज पीएल अकाउंट, सेकंड वन इज बैलेंस शीट, थर्ड वन इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, फोर्थ वन इज नोट्स टू अकाउंट, फिफ्थ वन इज चेंज इन इक्विटी शेयर्स वैल्यू और चेंज इन द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हमको ये 5 चीज प्रिपेयर करवाना पड़ता है। सो नॉर्मली परचेज के लिए क्या ट्रांजैक्शन होता है जर्नल, उसको कैसे पोस्टिंग करवाते हैं आपको पता है। सेल्स के लिए कैसे होता है आपको पता है। इलेक्ट्रिक बिल मैंने पेमेंट कर दिया क्या होता है पता है। बैंक चार्जेस पेमेंट कर दिया क्या होगा जर्नल एंट्री आपको पता है। पर जब हम आज के क्लास में और ये जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा, सोच लो जो कंपनी है उसका इश्यू ऑफ शेयर, उसने वो कैपिटल लाने के लिए शेयर इशू किया। सोच लो जैसे कैपिटल बिजनेस को आया, अगर बिजनेस को कैपिटल आ रहा है तो हमारा जर्नल एंट्री क्या होता था रे? कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। वैसे ही अगर शेयर बिजनेस में हम पैसा एक बार में आ जाता तो हम भी लिख लेते, एंट्री में क्या लिखते? कैश अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बट ये जो शेयर है एकदम एक ट्रांजेक्शन में नहीं आ रहा है। सोच लो कैसा ट्रांजेक्शन में आ रहा है, क्या आ रहा है, हम बाद में पढ़ेंगे 5 मिनट के बाद। हमको ये सब अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो परचेज का एडजस्टमेंट पता है, सेल्स का एडजस्टमेंट पता है, इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट कर दिया, ऑल सब नॉर्मल एक्सपेंसेस का चीज हम लोग पता है। ये जो इश्यू ऑफ शेयर के लिए ट्रांजेक्शन क्या होगा इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे सोच लो ये एक बिजनेस था, बिजनेस 1, ये है बिजनेस 2। ये चाह रहे हैं हम दोनों को मिल जाना चाहिए, क्योंकि देखो ये किसमें, ये मार्कर में बिजनेस कर रहा है, ये भी मार्कर में बिजनेस कर रहा है।
दोनों का मार्केट में बहुत कंपटीशन चल रहा है। अगर ये कंपटीशन ज्यादा होगा तो कस्टमर को फायदा होगा, बिजनेसमैन को नुकसान होगा। तो ये लोग बोल रहे कि हम दोनों बिजनेस को मिला लेंगे। वो मिलाने का हम लोग को कॉमर्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एमलगेमेशन एंड मर्जर। क्या होता है एमलगमेशन, क्या होता है मर्जर, कैसे होता है, ये सब भी ट्रांजेक्शन हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे पॉइंट नंबर 4 इज, तुमको अभी जरूरत नहीं है, कंपनी को बंद कर देना चाहिए। तुम सोच रहे हो कि कंपनी में मेरा प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है, मैं क्या करता हूं, इसको बेच देता हूं, इसको बंद करवा देता हूं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? सिंपल सा चीज, हमको ये सब बारे में इसमें डिस्कशन करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? सिंपल सा चीज बोल रहा है। तुम बोलोगे सर हमने तो पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट सब प्रिपेयर करवा दिया। तो आप लोग जो प्रेजेंटेशन करवाते थे वो टी फॉर्म में था, समझ में आ रहा है? अभी ये टी फॉर्म हटके हमारे जो स्पेशल है, कंपनी एक्ट में हम लोग एक पढ़ेंगे, शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज फॉर बैलेंस शीट, पार्ट 2 इज फॉर पीएल अकाउंट। कैसे रिकॉर्ड होता है, क्लियर? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको कैसे प्रिपेयर करवाना पड़ेगा हम लोग पढ़ेंगे, वर्टिकली प्रिपेयर करवाना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? उसको कैसे हम लोग अभी क्या करते थे वैसे प्रिपेयर करते थे। इधर लिख लो पर्टिकुलर्स, डेबिट, क्रेडिट। अब ये क्या हो गया, पीएल अकाउंट। बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करवाते थे, दिस वन इज योर लाइबिलिटी, दिस वन इज योर एसेट, वैसे प्रिपेयर करवाते थे। तो सिंपल सा चीज, ये जो एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन से और हम ऐसे प्रिपेयर करवाएंगे या कैसे प्रिपेयर, ये जो पुराना चीज था किसमें था 1956, अभी हम लोग क्या कर रहा है वर्टिकुलरली प्रिपेयर कर रहा है। जैसे इधर ले लो प्रीवियस ईयर, इधर ले लो करंट ईयर, इधर ले लो पर्टिकुलर्स। कैसे प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, किस चीज को कहां डालना पड़ेगा, ये सब चीज हम किधर पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में हमको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट वन इज योर परचेज सेल्स, ये सो आप लोग को पता है कैसा ट्रांजेक्शन होगा। नेक्स्ट वन इज योर इशू ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट वन इज योर अगर दो बिजनेस मिल रहे तो उसके लिए क्या ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, कंपनी टोटली बंद हो जा रहा है उसके लिए क्या ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको किस तरीके से प्रेजेंट करवाना पड़ेगा, ये सब कहाँ मेंशन है, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में प्रिपेयर। ओके, फटाफट ये चीज नोट करवाओ, एक सेकेंड। ओके चलो, तो हम आज क्लास में एक्सक्लूसिवली वी विल स्टार्ट एन चैप्टर, दिस इज फर्स्ट चैप्टर, इशू ऑफ शेयर्स। ओके, देखो इशू ऑफ शेयर का मतलब क्या है, फर्स्ट वन हम देखते हैं शेयर का मतलब क्या है। ओके, शेयर देखने के पहले से हमको एक चीज देखना पड़ेगा, व्हाट इज कैपिटल। आप लोग को पता है द चैप्टर इज इशू ऑफ शेयर्स। इसके पहले हमको एक चीज देखना पड़ेगा, व्हाट इज कैपिटल। कैपिटल मीन्स एनी अमाउंट, एनी मनी और मनीज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का ओनर लोग ने जितना इन्वेस्टमेंट किए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल। सिंपली वर्ड क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस शेयर। व्हाट इज शेयर? शेयर इज द शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एन कंपनी। फिर से सुनो, शेयर इज दी, कंपनी एक्ट में लिखा है, मैं खुद नहीं बोल रहा हूं, शेयर इज दी शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एन कंपनी। सोच लो ये जो कैपिटल है इसको हम क्या बोल पाएंगे, शेयर कैपिटल। मेरा कैपिटल है क्या, 5 लाख। मुझे कैपिटल मार्केट से ये पैसा चाहिए। अगर मुझे 5 लाख चाहिए तो मैं किसी ऐसे 5 लाख नहीं तो 5 लाख नॉर्मल समय ट्रांजेक्शन लेता हूं, नहीं तो कंपनी को 5 लाख करोड़ चाहिए।
अगर वो 5 लाख चाहिए तो जनरली एक बंदा से मांगने से उसको नहीं मिलेगा, एक बैंक से लोन लाख को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए ये क्या बोल रहा है कि ये जो 5 लाख है मैं क्या करूं, एक एक शेयर का वैल्यू 100 कर दूं, 5000 शेयर कर दूं। इसका मतलब ये जो पूरा 5 लाख कैपिटल is shared into one small amount of rupees 100 having 5000 shares. So this is known as share cap share. This one is share capital. Share cap share is the share of share capital of an company. ये हो गया बहुत बड़ा 5 लाख। इसका एक छोटा छोटा शेयर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। सिंपली शेयर इज दी शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एन कंपनी। ये डेफिनेशन आपको थोड़ा अजब लगेगा क्योंकि जैसे देखो रे हम लोग कंपनी बड़े, कंपनी का मतलब क्या है रे, कंपनी इज एन कंपनी व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 2013 और एनी प्रीवियस लॉ। कंपनी का मतलब क्या, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ है। ये थोड़ा कंपनी एक्ट का डेफिनेशन आपको अजब लगेगा बट ये एकदम सही है। जब फिलहाल हम लोग पढ़ते पढ़ते चलेंगे आगे आगे आपको एकदम क्लियर होते चलेगा। ओके, सो शेयर इज दी शेयर ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ एन कंपनी। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को? सो ये सब चीज क्या हो गया शेयर के बारे में। अभी मैं क्या बोलता हूं, इश्यू ऑफ शेयर जो है ये शेयर पढ़ने से पहले और इसी को शेयर करने पहले हम लोग देखते हैं कैपिटल बिजनेस का कहां से आ रहा है। पहले थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ये आप लोग को पता है, मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करके चलता हूं तो याद आ जाएगा आप लोग को। सो ए कंपनी गेट्स इज कैपिटल फ्रॉम मेनी वेज। उसके पास बहुत सारे चॉइस है, वो कहां से भी ला सकता है। जैसे क्या होगा, फर्स्ट वन इज योर इक्विटी शेयर, सेकेंड वन इज योर प्रेफरेंस शेयर, थर्ड वन इज योर लोन एंड डिवेंचर, फोर्थ वन इज योर रिटेन अर्निंग। क्या होता है ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले मैं एक चीज को फोकस करता हूं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सिंपली आपको पता होता है, फर्स्ट वन इज हम लोग प्रेफरेंस शेयर के बारे में पढ़ता है। शेयर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज इक्विटी शेयर, सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर मींस those shares which will get preferential right at the time of repayment of his amount or at the time of payment of dividend। सिंपल सा चीज बोल रहा है भाई, प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या है रे, जो प्रेफरेंशियल राइट पाएगा। कहां प्रेफरेंशियल राइट पाएगा, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब डिविडेंड मिलेगा पहले किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। नेक्स्ट वन इज रिटर्निंग ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, मतलब जिसको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा। कहां प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा, दो पॉइंट में। फर्स्ट वन इज पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जब डिविडेंड मिलेगा तभी डिविडेंड किसको मिलेगा, फर्स्ट वन प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज रिटर्निंग ऑफ मनी एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। सिंपल सा चीज बोल रहा है, प्रेफरेंस शेयर आर दोज शेयर who will get preferential right at the time of payment of dividend and at the returning of money at the time of liquidation। जब कंपनी बंद हो जाएगा उसके पहले किसको मिलेगा पैसा, जिसको मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेफरेंशियल राइट। तुम बोलोगे सर इक्विटी शेयर क्या है, सिंपल सा चीज, इक्विटी शेयर मींस who will not get preferential right at the time of payment of dividend at the time of returning money at the time of liquidation। सिंपल सा चीज, जिस ये दोनों को पॉइंट में, ये दोनों को बेसिस में जिसको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा उसको बोलेंगे प्रेफरेंस शेयर। ये दोनों पॉइंट में जिसको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं। सिंपल सा चीज, प्रेफरेंस शेयर मींस दोज शेयर्स हु विल गेट प्रेफरेंशियल राइट at the time of payment of dividend and at the time of returning money for liquidation। जब कंपनी बंद होगा पहले पैसा किसको मिलेगा, कौन सा शेयर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। जब कंपनी बंद होगा पहले प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा
उसके बाद इक्विटी शेयर को मिलेगा। सो इक्विटी शेयर का मतलब क्या है रे? दो शेयर्स आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स और दोज आर नॉट हैविंग एनी प्रेफरेंशियल राइट। फिर से बोल रहा हूं एक वर्ड, दोज शेयर्स आर नॉट हैविंग एनी प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एट द रिटर्निंग ऑफ मनी। दैट्स ऑल। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी हम लोग देखते हैं जो कंपनी का शेयर कैपिटल होता है वो कितने का होता है। आपको समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कशन करते चल रहा हूं, ये आप सब पढ़ चुके हैं। अभी जो हम पढ़ेंगे ये आपका शुरुआत है। तो पहला पॉइंट क्या देखो, इश्यू ऑफ कैपिटल में हमारा जो शेयर कैपिटल है वो 6 टाइप पे डिवाइड हुआ है। क्लियर? आपका एक वर्ड पता है MOA एंड AOA, सुने होगे कभी? नाम तो पता होगा। MOA मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, AOA मीन्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्या होता है भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज एन पब्लिक डॉक्यूमेंट, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज एन प्राइवेट डॉक्यूमेंट फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। बाहर वालों के साथ कैसा रिलेशन रखना है MOA बताएगा। मतलब एक कंपनी फॉर्मेशन के लिए, जैसे मेरा एग्जिस्टेंस का है रे आधार कार्ड में, मेरे पास आधार कार्ड है तो मेरा एग्जिस्टेंस है और कुछ भी ID प्रूफ है। जैसे कंपनी का शुरुआत करने के लिए ये दो चीज देखो, कंपनी का तो आइडेंटिफिकेशन सीन नंबर है, अभी यानी हम लोग पढ़ेंगे कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, पर जैसे फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, ये फॉर्मेशन के लिए ये दो डॉक्यूमेंट चाहिए ही चाहिए। So first one is memorandum of association, second one is articles of association. Memorandum of association में clause होते हैं, बहुत सारे clause, six clauses are there. First one is your capital clause, objective clause, registered office clause, name clause, subscription clause, liability clause. 6 याद आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? First one is name clause, छोटा छोटा लिख लेता हूँ हाँ, name clause, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज जिसको हम क्या बोलते हैं एड्रेस क्लॉज। नेक्स्ट वन इज योर कैपिटल क्लॉज, मेरे से ये मतलब है, ये बाकी आप एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। क्या है फर्स्ट वन? नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कैपिटल क्लॉज। नेक्स्ट वन इज योर लाइबिलिटी क्लॉज, नेक्स्ट वन इज योर ऑब्जेक्टिव क्लॉज, नेक्स्ट वन इज योर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अभी 1% कंपनी आपको याद होगा, टाइप्स ऑफ कंपनी में आप लोग पढ़े होंगे। 1% कंपनी के लिए एक एक्स्ट्रा क्लॉज है नॉमिनी क्लॉज। तो ओपीसी के लिए कितना क्लॉज है? 7 क्लॉज। नॉर्मल कंपनी के लिए कितना क्लॉज है? 6 क्लॉज। ये जो कैपिटल क्लॉज है ना, ये मुझे चाहिए। इस हिसाब से कैपिटल क्लॉज में हमको क्या लिखना पड़ेगा? The maximum amount of capital invested by a company is this। फिर से बोल रहा हूं, जो कैपिटल क्लॉज में, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 7 क्लॉजेस है, इंक्लूडिंग ओपीसी क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज, मैं मानते चल रहा हूं वो भी एक कंपनी है। जो 7 क्लॉज है, क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। वो कैपिटल क्लॉज में क्या बोल रहा है? व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल? मैं कंपनी में कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल रख पाऊंगा, उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट वन इज योर नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। सिंपल सा चीज बोल रहा है। एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन में जो बताते जा रहा हूं, थोड़ा थोड़ा आप लोग नोट करते चलो। मैं तो नोट प्रोवाइड करूंगा, फिर भी नोट बनाते चलो, रेगुलर नोट, मजा आएगा पढ़ने में। फर्स्ट वन इज योर नॉमिनल क्लॉज और रजिस्टर्ड क्लॉज, सॉरी नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। क्या होता है नॉमिनल कैपिटल? एट द टाइम ऑफ मेकिंग और फॉर्मेशन ऑफ कंपनी वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। मैक्सिमम, सबसे ज्यादा, मतलब इससे ज्यादा हम लोग नहीं ले सकते। ये मेरा क्या हो गया? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड बाय एन कंपनी। सबसे ज्यादा मैं कितना इन्वेस्ट करूंगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज योर इशूड कैपिटल। मैं पहले लिख लेता हूं 6, उसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज योर नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, नेक्स्ट वन इज योर इशूड कैपिटल,
नेक्स्ट वन इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल, नेक्स्ट वन इज योर कॉल्ड अप कैपिटल, next one is your paid off capital, next one is your reserve capital. So ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल एंड डिफाइन द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. फर्स्ट वन इज योर नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल, next one is your issued capital, next one is your subscribed capital, next one is your called off capital, next one is your paid off capital, next one is your reserve capital. देखते हैं कैसे होता है. सिंपल सा मीनिंग, आपको ये बात तो पता चल गया भाई नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या है. नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल. लिखता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. दिस इज द maximum amount of capital at the time of incorporation of the company. जब हम लोग कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे तभी हमको क्या बताना पड़ेगा कि भाई कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा, मैक्सिमम कैपिटल कितना रहेगा. इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नोन एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल. सोच लो एट द टाइम ऑफ मेकिंग एन कंपनी मैंने सोचा था भाई मुझे कितना का बिजनेस करना है, 5 लाख का बिजनेस करना है. मेरा कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल कितना रहेगा, 5 लाख रहेगा. मतलब मैं मार्केट से ज्यादा कितना पैसा उठा पाऊंगा, 5 लाख उठा पाऊंगा. मतलब शेयर इश्यू करूंगा, पैसा लाऊंगा, मैक्सिमम कितना ला पाऊंगा, 5 लाख ला पाऊंगा. सोच लो मैं अभी बिजनेस शुरू कर रहा हूं, एकदम 5 लाख का शेयर इश्यू कर दूं, क्या करूं. सोच लो ये 5 लाख से मैंने क्या किया, पब्लिक को 3 लाख का शेयर इश्यू किया. अच्छे सुनो, पूरा जो 5 लाख का शेयर था मेरा, मैक्सिमम 5 लाख, पर मुझे अभी कितना चाहिए, 3 लाख चाहिए. इसीलिए मैंने क्या किया, 3 लाख का शेयर मार्केट से इश्यू किया. पर जब 3 लाख का शेयर मार्केट से इश्यू किया तभी मैंने और एक काम किया कि भाई मुझे 3 लाख का शेयर मार्केट से चाहिए. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. तभी मार्केट से जो रेस्पॉन्स आया, सोच लो मार्केट से मेरा 2,90,000 का सब्सक्राइब हुआ. मतलब मैंने सोच लो एक शेयर का वैल्यू 10 रुपीज है, तो मैंने 30,000 शेयर इश्यू किया था. उसमें से 29,000 शेयर होल्डर ने मुझे बोल दिया कि सर हम लोग खरीदेंगे. समझ में आ रहा है. दिस वन इज योर 2,90,000 शेयर कैपिटल. सिंपली अब थोड़ा ऊपर चलता हूं मैंने. नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब क्या है रे, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड और डिफाइंड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन कंपनी. एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैंने क्या बोला था कि मेरा मैक्सिमम अमाउंट कितना रहेगा, 5 लाख रहेगा. क्लियर, समझ में आ रहा है. नेक्स्ट वन इज योर इश्यूड कैपिटल. सिंपल सा चीज बोल रहा है कि ये 3,000, मुझे 5,000 मैक्सिमम चाहिए भाई, फिलहाल अभी 3,000 चाहिए, तो मैं 3 लाख चाहिए मुझे. 5 लाख मेरा मैक्सिमम है, पर मुझे अभी कितना चाहिए, 3 लाख. में फालतू का 5 लाख निकाल के उसको इंटरेस्ट क्यों दूं. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. तो मुझे अभी जितना चाहिए उतना से मैं मार्केट में इश्यू करूं, इसको बोलेंगे इश्यूड कैपिटल. फिर से सुनो. सो इश्यूड कैपिटल का मतलब क्या हुआ रे, इश्यूड कैपिटल इज दी पार्ट ऑफ नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल. 3 लाख कहां से आया रे, ये 5 लाख जो पूरा था उसमें से 3 लाख लाया. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, issued capital is the part of nominal capital which are issued to general public. सिंपल सा चीज बोल रहा हूं, लिखो नहीं तो. issued capital is the part of nominal capital which issued to general public. मतलब ये जो issued capital हमेशा किसका पार्ट होगा, नॉमिनल का पार्ट, नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल का पार्ट होगा, जो पार्ट हम लोग पब्लिक को इश्यू कर रहे हैं. क्लियर, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं. नेक्स्ट वन इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज आल्सो पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल. मतलब ये भी जो आएगा सब्सक्राइब्ड कैपिटल किसका पार्ट होगा, इसका पार्ट होगा. मतलब 3 लाख से 2,90,000 का सब्सक्रिप्शन आया.
इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सो व्हाट इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल व्हिच इज रिसीव्ड बाय द शेयर होल्डर। मतलब जिसका कंफर्मेशन आ गया कि भाई मैं रिसीव करूंगा तेरा शेयर होल्डर और शेयर प्राइस, इसको क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब मार्केट से मुझे कितना मिलेगा रे भाई? अभी 2,90,000 मिलेगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? जो ये 2,90,000 थे, ये 2,90,000 फिलहाल अभी मुझे नहीं चाहिए, मुझे पार्ट स्टेज वाइज पैसे चाहिए। जैसे सोच लो मेरा एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, कुछ भी बिजनेस है, मुझे पार्ट वाइज पैसा चाहिए। तो इसका जो छोटा छोटा पार्ट होगा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि ऐसा कौन सा है। जनरली 3 फेज होता है पैसा मांगने के लिए। फर्स्ट वन इज योर एप्लीकेशन, सेकेंड वन इज योर अलॉटमेंट, थर्ड वन इज योर कॉल मनी और कॉल स्टेज। समझ में आ रहा है? एट द टाइम ऑफ इशूड हमको क्या मांगना पड़ेगा? एप्लीकेशन मनी मांगना पड़ेगा। हम लोग अच्छे से डिस्कशन करवाए, थोड़ा थोड़ा मैं इंटरलिंक करता हूं। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। जो पहले सब्सक्राइब्ड कैपिटल कस्टमर ने जितना सब्सक्राइब किया, तभी मुझे क्या करना पड़ेगा? ये 2,90,000 से मैं बोला भाई 2,90,000 पूरा आप मत दो, मुझे कितना चाहिए? 1,00,000 अभी चाहिए, मुझे 1,00,000 ही दो। दिस वन इज योर कॉल्ड ऑफ कैपिटल। जो मैंने 1,00,000 मांगा सब तो भाई सही नहीं है, मैं इसको 1,00,000 मांगूंगा तो वो सब 1,00,000 दे देंगे बोल के 1,00,000 दे सकते हैं, नहीं तो उसमें से सोच लो मुझे 90,000 का सिंपल सा बात मिला। मैंने मांगा था 1,00,000, पर शेयर में ओनर बात जिसमें शेयर कैपिटल, शेयर इक्विटी, शेयर होल्डर ने मुझे कितना दिए? 90,000 रुपीज दिए। इसको हम बोलते हैं पेड ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम बोलोगे सर रिजर्व कैपिटल क्या है? सिंपल सा चीज, कंपनी का इशू मैंने कितना करवाया था रे? 2,90,000 का इशू करवाया था। तो जब मैंने इशू करवाया उसमें से मुझे कॉल्ड ऑफ 1,00,000 किया, जो और बाकी चीज है वो क्या आएगा? ये दोनों का डिफरेंस 2,90,000 माइनस 1,00,000, ये क्या आएगा? रिजर्व कैपिटल। मतलब मुझे अभी पैसे नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, कब चाहिए? मैं इसको रिजर्व करके रखा हूं 1,90,000, जब मन करेगा, जब चाहिए तब फटाफट मांग लूंगा। इसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल। छोड़ दो, पहले क्या पढ़ा हम लोग? द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 6 टाइप्स। फर्स्ट वन इज योर रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल का मतलब क्या होता है रे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जब कंपनी पैदा होगा, शुरुआत होगा, बिजनेस स्टार्ट होगा, तभी उसको हमको क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम अमाउंट डिस्कशन करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। उसका पार्ट होगा व्हाट इज इशूड कैपिटल? इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल व्हिच इज इशूड टू जनरल पब्लिक। ये इशूड कैपिटल किसका पार्ट है? नॉमिनल कैपिटल का पार्ट है। नेक्स्ट वन इज योर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। Issued capital is the part of nominal capital. Subscribed capital is the part of issued capital. Called off capital is the part of subscribed capital. Paid off capital is the part of called off capital. Reserve capital को बाद में पढ़ते क्या है? फिर से बोल रहा हूँ, issued capital किसका पार्ट है? Nominal capital और registered capital का पार्ट है। Subscribed capital किसका पार्ट है? Issued capital का पार्ट है। Called off capital किसका पार्ट है? Subscribed capital का पार्ट है। पेड ऑफ कैपिटल किसका पार्ट है? कॉल्ड ऑफ कैपिटल का पार्ट है, उसका ऊपर का ऑलवेज पार्ट होगा। तो डेफिनेशन फटाफट पढ़ते हैं। नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल को मैंने बता दिया भाई, 100 बार बता चुका हूं। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ओके, नेक्स्ट वन इज योर इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल व्हिच इज issued capital is the part of nominal capital which is issued to general public. What is subscribed capital? Subscribed capital is the amount of capital which is subscribed by issuer. हमने सोच लो 3,00,000 इशू करवाया था, उसमें से 2,90,000 कस्टमर ने मैंने सब्सक्रिप्शन किए, इसको हम क्या बोलेंगे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नेक्स्ट वन इज योर पेड ऑफ कैपिटल। इट इज द पार्ट ऑफ कॉल्ड ऑफ कैपिटल। मतलब ये जो पेड ऑफ है, जैसे सोच लो मैंने क्या मांगा है, उनको 1,00,000 चाहिए, तो पूरा 1,00,000 ये तो मुझे नहीं मिलेगा भाई,
कितना पैसा मिलेगा? 90,000 मिलेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? पेड ऑफ कैपिटल। लास्ट इज योर रिजर्व कैपिटल। मैंने बोला कि जो अमाउंट है वो मुझे नहीं मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? जैसे सोच लो, ये मेरा 2,90,000 है, ये 1 लाख, दोनों का डिफरेंस। मतलब मैं सोच रहा हूं कि 2,90,000 मुझे मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। मैंने मांगा कि भाई 1 लाख मुझे अभी दे दो, जब बाद में मिलेगा, ये दोनों का डिफरेंस 1,90,000 इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। ओके, फटाफट नोट आउट करवाओ इसको। ओके, देखो पहले क्या था रे, इसको कंप्लीट करवाते हैं। आपको एक वर्ड हमेशा कंफ्यूजन करेगा, भाई रिजर्व कैपिटल एक चीज है, तुम बोलोगे सर हमने एक वर्ड सोचा था कैपिटल रिजर्व, दोनों सेम है? एकदम अलग है। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व इज टू डिफरेंट थिंग्स। फिर से बता दे रहा हूं एक बार फटाफट, फिर हम लोग रिजर्व कैपिटल के हिसाब से चलेंगे। नॉमिनल कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ नॉमिनल कैपिटल व्हिच इज इशूड टू जनरल पब्लिक। समझ में आ रहा है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, उसका ऊपर आएगा। क्लियर? सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल which is requested और which is received by general public। जनरल पब्लिक ने जितना रिसीव किया इसको बोलेंगे सब्सक्राइब। कॉल्ड अप मतलब वो जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल which is कॉल्ड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल which is written by which is requested by the customers to pay, requested by the company for payment। कंपनी ने बोला भाई हमको इतना दे दो, इसको बोलेंगे कॉल्ड ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट वन इज पेड ऑफ, हमने जितना मांगा था उतना नहीं मिलकर थोड़ा कम मिला और उतना मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे? पेड ऑफ कैपिटल। पेड ऑफ कैपिटल इज दी पार्ट ऑफ कॉल्ड ऑफ कैपिटल। रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है रे? डिफरेंस बिटवीन सब्सक्राइब्ड कैपिटल एंड कॉल्ड ऑफ कैपिटल। मैंने सोचा था मुझे 2,90,000 चाहिए, पर मैंने अभी मांगा 1,000 और बाकी जो अमाउंट है उसको हम क्या बोलेंगे? रिजर्व कैपिटल बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? अभी एक चीज आएगा रे, हम लोग अभी नहीं पढ़ते, बाद में पढ़ेंगे। सब्सक्राइब्ड कैपिटल अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। वन इज नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट वन इज अंडर सब्सक्रिप्शन, नेक्स्ट वन इज ओवर सब्सक्रिप्शन। वर्ड ही याद रखो, उसका मतलब क्या है हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, कुछ टेंशन मत लो, बस उतना हम लोग को पढ़ना है बोल के याद रखो। सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो। अभी फिलहाल हम लोग किधर चलते हैं? डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड कंफ्यूजन चीज है। पहले लिखता हूं reserved capital, next one is your capital reserve। क्या होता है रिजर्व कैपिटल? मैंने अभी बताया, रिजर्व कैपिटल का मतलब द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व फॉर कॉल्ड अप। मतलब सोचा था 2,90,000 मैंने पब्लिक बोला कि हमने देंगे, पर अभी मैंने कितना मांगा रे कि मुझे 1,90,000 1 लाख चाहिए, तो अभी जो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज नोन एज रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या है रे? कैपिटल रिजर्व इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। मतलब जो कैपिटल प्रॉफिट है, जैसे सोच लो मेरे पास एक एसी था और एक बिल्डिंग था, मैंने उसको बेच दिया, उसमें से मुझे प्रॉफिट मिला 5 लाख। ये कैपिटल प्रॉफिट है या रेवेन्यू प्रॉफिट है? कैपिटल प्रॉफिट है। उसको कहां ट्रांसफर करवाना पड़ेगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। दिस वन इज रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है रे? दी अनकॉल्ड कैपिटल कॉल्ड इज नोन एज, the uncalled capital ही लिख लो, the uncalled capital is known as reserve capital। मतलब मेरा इतना पैसा रिजर्व है, जब चाहिए मैं मांग लूंगा। जनरली रिजर्व कैपिटल कब मांगते हैं रे? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी।
कंपनी का जब बंद होने वाला था तभी ये लोग क्या मांगेंगे, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। देखो अच्छे से थोड़ा डिसाइड करो, ऑनकॉल्ड कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल दोनों सेम नहीं है जैसे सोचा था, वो पॉइंट पे सेम होगा। जैसे सिंपल सा मीनिंग रे, एक काम करो, 100 रुपीज का शेयर था, 100 रुपीज का शेयर से सोच लो एप्लीकेशन स्टेज है, अलॉटमेंट स्टेज है, कॉल्ड अप स्टेज है। एक शेयर जो 100 रुपीज है, मैंने एप्लीकेशन में 20 मांग लिया, अलॉटमेंट में और 20 मांग लिया, कॉल मनी में 30 मांग लिया, तो 20 + 20 40 + 30 कितना हो गया, 70 हो गया। इसका मतलब और जो 30 रुपीज है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। सिंपल सा मीनिंग है, अच्छे से सुनो। कॉल्ड ऑनकॉल्ड कैपिटल हमेशा नहीं होता है, पर वो पॉइंट में ऐसा होगा। सिंपल सा मीनिंग, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल, ये तो तीनों को छोड़ के और जो बाकी बच गया इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिजर्व कैपिटल। ये कब मिलेगा, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। कंपनी जब बंद होगा तभी हमको ये चाहिए, हम मांगेंगे उसको। नेक्स्ट वन इज कैपिटल रिजर्व, अमाउंट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर। ये कब काम आएगा रे, एनी टाइप ऑफ कैपिटल लॉस। समझ में आ रहा है, कैपिटल लॉस मतलब कुछ भी कैपिटल लॉस हो इसमें से हम लोग एडजस्ट करेंगे, और कैपिटल एक्सपेंसेस हो, ये भी कैपिटल लॉस और एक्सपेंसेस, ये दोनों का भी कहां आएगा, कैपिटल रिजर्व में आएगा। सिंपल सा चीज। और एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन, दिस इज सोन इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। मतलब ये जो कैपिटल रिजर्व है कहां मेंशन होगा रे, बैलेंस शीट का जो बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड है वहां क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व मेंशन करवाना पड़ेगा। बट रिजर्व कैपिटल कहां लिखेंगे, कहीं भी नहीं लिखेंगे, नो स्पेस इन एनी अकाउंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। ये जो बैलेंस शीट ना पीएल अकाउंट ना कहां हमको ये लिखना पड़ेगा, कहीं नहीं लिखना पड़ेगा। बट ये जो, और हम लोग कभी कभी क्या लिखेंगे रे, ये नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे, नोट्स टू, कभी कभी नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे। बट ये जो कैपिटल रिजर्व है हम कहां लिखेंगे, दिस इज सोन इन दी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ओके, क्लियर। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कशन किए, फर्स्ट वन डिस्कशन किए, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कंसिस्ट ऑफ two word, one is corporate, second one is accounting. Corporate means company, accounting is the process of recording, classifying ... Okay, company means any company registered under the Companies Act 2013 or any previous Companies Act, that is Companies Act 1956. Okay, clear, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन, कंपनी का कैरेक्टर फिट, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कॉमन सील, सेपरेट लीगल एंटिटी, और ये सब चीज हम लोगों ने डिस्कशन किया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन कंपनी। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज द टाइप्स ऑफ कैपिटल, किस कैसे पैसा मार्केट से कैसे कैसे उठा रहे कंपनी। फर्स्ट वन इज योर शेयर, नेक्स्ट वन इज योर लोन, डिवेंचर, रिटेन अर्निंग। जो शेयर है डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, वन इज इक्विटी शेयर्स, सेकंड वन इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर which who will get preferential right, who will get preferential right at the time of getting dividend or at the time of returning the money at the time of liquidation of company. इसको क्या बोलेंगे, preferential shares. Equity shares who will not give any type of preferential rights is known as equity share. उसके बाद हम लोग क्या पढ़े रहे, types of share capital. Share capital is divided into 6 types. Nominal capital or registered capital, issued capital, subscribed capital, called off capital, paid off capital. Next one is your capital reserve. Clear? अभी फिलहाल क्या पढ़े, नेक्स्ट वन इज योर रिजर्व कैपिटल। नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़े थे, डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। ओके, थैंक यू।